इंट्रोडक्शन ही हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहते हैं ये कि इन एडिशन टू द यूनिटी ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल आउटलुक, कि हिंदुस्तानी फिलॉसफी का आउटलुक बाय एंड लार्ज मॉरल और स्पिरिचुअल है। वी मे ऑल्सो नोट द प्रिवेलिंग सेंस ऑफ द वास्टनेस ऑफ स्पेस टाइम वर्ल्ड व्हिच फॉर्म्ड द कॉमन ग्राउंड ऑफ इंडियन थॉट। ठीक, वेस्टर्न बिलीफ है कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड 6000 एंड ऑड इयर्स अगो एंड ऑल फॉर द पर्पस ऑफ मैन। अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हमने इस्लाम एट क्रॉसरोड्स पढ़ा था, हमने वहाँ पे ये आर्ग्यू किया कि वेस्टर्न फिलॉसफी टेक्स मैन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि हर एक चीज उसकी पर्पस के लिए बनी। Constituted a narrowness of outlook and exaggerated the importance of man. तो इसीलिए फिर वो thought, knowledge is power, power over what? Power to control nature, उसके ऊपर control करना, उसका अपने whims and fancies के हिसाब से घुमाना। This belief has been shaken by the biological discoveries of Darwin and others who show that evolution of living beings has to be conceived in the terms of millions of years. Not just this, इसके अलावा भी हमारे पास कार्बन डेटिंग एटसेट्रा साइंटिफिक मेथड से अभी पता है कि इतनी 6000 साल पुरानी नहीं रही होगी दुनिया। अभी 6000 वाला नंबर लाया कहाँ से था इन्होंने? ये 6000 वाला नंबर आता है जेनेसिस से, बाइबल की पहली बुक जेनेसिस। तो उसमें डिस्क्राइब किया गया है और उसमें जीनियोलॉजीज हैं और फिर आगे भी जीनियोलॉजीज हैं। हजरत ईसा की जीनियोलॉजी है, तो उसमें जो जनरेशन्स आती है, तो उसमें जो कितनी जनरेशन्स हजरत आदम से अभी तक रही हैं हजरत ईसा के दौर तक, तो वो जनरेशन जब आप काउंट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी लगभग 4000 साल पहले हजरत ईसा के ये क्या नाम है इनका, हजरत आदम रहे होंगे। तो उस हिसाब से जो वो जीनियोलॉजी, और उसके कुछ टाइम पहले कायनात बनी होगी। तो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल पॉइंट वाज, कहाँ से उन्होंने वो नंबर लाया। So the science of astronomy again is gradually generating the belief in the vastness of the universe, कि ये जो तुम इस छोटे से गोले पे रह रहे हो, ये इतना ही नहीं है। This universe is millions of light years. इतनी इसकी वसत है। It's a great big thing and you are very small, a tiny speck in it. The sun in this calculation is mere speck in the universe. और Earth भी 1/1,000,000th part of that speck. And we are reminded that each faint speck of nebula observable in the sky contained matter enough for creation of perhaps 1,000 million suns like ours. कहने की बात कि कायनात इतनी बड़ी है, उसमें से आप छोटी सी एक हस्ती हो। Our imagination feels staggered in its attempt to grasp the vastness of the space-time universe revealed by science. In fact, इसकी appreciation नहीं हो पाती किसी दिन। Give it some time to appreciate how big the universe is. कितनी बड़ी चीज। A similar feeling is caused by the accounts of creation given in some of the Puran. पुराण में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही view of creation है, which would but for modern discoveries be laughed at as pure fantasy. जिनको अगर आप पहले पढ़ते तो आपको फैंटेसी लगती। In the Vishnu Puran, पुराण में से एक है, फॉर एग्जाम्पल we came across the popular Indian conception of the world which contains the 14 regions, लोक, different लोक हैं, उनमें 14 regions हैं, ठीक, 14 लोक हैं total, of which the earth is only one, which are separated from one another by tens of millions of yojanas. And again the infinite universe is conceived as containing thousands and millions of such worlds. As to the description of vastness of the time, we find the Indian thinker, जैसे modern scientist होता है, he feels unable to describe it by common human units. कितनी vastness है कि इसको normal language में बयान करना नामुमकिन। The unit adopted for the measurement of cosmic time is a day of the creator Brahma. Each day of the creator is equal to 1000 युग। ब्रह्मा का एक दिन आपके 1000 युगों के बराबर है, जो 432 मिलियन ईयर्स है। आपको पैरेलल दिख रहा होगा एक कुरान के साथ। हाँ शाकिर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो आगे।
This is the duration of period of each creation of cosmos. The night of the creator is cessation of creative activity and means destruction or chaos. Such alternating days and nights, creation and destruction, सृष्टि और प्रलय, हिंदूज का सर्कुलर व्यू है हिस्ट्री का. सो क्रिएशन कम्स गोज ऐसे है. ये एक बिगिनिंगलेस सीरीज बनाती है. ये जो है बिगिनिंगलेस सीरीज, इसको कहते हैं, खुद में एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है. इन्होंने बड़े इजीली कह दिया कि ये इतनी बड़ी चीजें हुई हैं. जब ये इसको बिगिनिंगलेस बना देते हैं, ये खुद मसला बन जाता है इनफाइनाइट रिग्रेशन का. ये कोई ऐसी बात आपने बोल दी कि कायनात इज इटर्नल. ये कहना आसान है लफ्जों में, लेकिन फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस और इसको फिर डिफेंड कर पाना उतना ही मुश्किल है साइमल्टेनियसली. It's not something one has to be proud about. It's something one has to give serious thinking about. कि how could there be a beginningless universe? तो वो खुद में एक अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है. फिलॉसफी में we try to avoid infinite regress. तो यहाँ पे आपको देखिएगा इंडियन फिलॉसफी में बड़ा इजीली इसको एक्सेप्ट किया गया. एंड यू वुड सी कि इसको एड्रेस नहीं करते हैं बाय एंड लार्ज स्कॉलर्स. मतलब इट्स एज इफ इट्स अ गिवन, बट इट्स अ फंडामेंटल इशू. It is not possible to ascertain the first beginning of creation. ये ascertain करना मुश्किल है, और ये भी arbitrary होगा to think that creation began at some time and not earlier. ये भी arbitrary होगा ये सोचना. And there are no data for fixing the first beginning of the universe. Indian thinkers in general universe को क्या कहते हैं कि it is beginningless. Anadi, beginningless. They try to explain the beginning of the present creation by reference to previous stages of dissolution and creation, and think it idle and meaningless. कि ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आप पहली क्रिएशन की बात करें, कायनात पहले कब बनी. Any term of a beginningless series can only be said to be earlier or later. तो हम रिलेटिव बात कर सकते हैं बस. हम ये नहीं कह सकते कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, 10वीं कौन सी है. हम सिर्फ रिलेटिव कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त की कायनात है ये पहली है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट वन जो आने वाली. ये 10वीं है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 9. तो ऐसे बात कर सकते हैं. देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट फर्स्ट इन सच अ सीरीज. With this overwhelming idea of vast universe as its background, Indian thought naturally hopped on the extreme smallness of the earth और इसकी transitionary attitude रखा इसके साथ कि ये कोई it's not a permanent thing, it's not gonna last forever. ये है इस वक्त, कल नहीं होगी ये कायनात. ये जो अर्थ है ये आज है कल नहीं होगी. आपकी धन दौलत ये आज है कल नहीं होगी. So this world will develop because of this idea. अगर अर्थ एक मेयर पॉइंट है वो इतनी बड़ी स्पेस में, और आपकी जिंदगी इट्स अ मेयर रिपल इन द ओशन ऑफ टाइम, तब फिर आपका व्यू यही होगा नेसेसरी. myriads of them come and go. And this universe as a whole, इसमें ये बहुत कम, द्रोड़ा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी. So this becomes a central philosophy हिंदुस्तान में. एक दिन आई सबकी बारी. Even the best civilization evolved through centuries, and this is also nothing unique in it. यह भी कोई बड़ी बात है नहीं. There is not one golden age. Golden ages आती है, जाती है, खत्म हो जाती है. In the beginningless cycle of creation and dissolution, there have been numerous and numberless golden ages. Infinite number of them. History is filled with rise and fall of civilizations and barbarity. इसका पैरेलल आपको कुरान में भी मिलेगा. ये जो ये व्यू है कि हिस्ट्री इज रिप्लीट विद द फॉल, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस, ये व्यू कुरान भी प्रेजेंट करता है. द जनरल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस आउटलुक ऑन मेटाफिजिक्स क्या होगा तब? इसका जनरल इन्फ्लुएंस होगा कि ये देखेगा प्रेजेंट वर्ल्ड को एज एन आउटकम ऑफ द पास्ट, एंड दिस वर्ल्ड वुड एक्सप्लेन द फॉर्मर एंड द लेटर. आने वाली कायनात को भी यही एक्सप्लेन करेगा, अभी की कायनात. तो यू वुड इसको लिंक करो कर्मा वाली थ्योरी से. Besides, it sets metaphysics on the search for the eternal.
ऑन द एथिकल एंड रिलीजियस साइड ये इंडियन माइंड को एक डिटैच्ड व्यू ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। वो मॉर्बिड डिजायर जो इंसान के अंदर होती है उससे इसको बचाने की कोशिश कर। It can be utilized for real while man's body is limited in space and time, but his spirit is eternal. His spirit is eternal. Human life is a rare opportunity. It can be utilized for realizing the immortal spirit. और फिर transcended these limitations of space and time. ये हो गया हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड खत्म। अब करेंगे थोड़ा सा हम ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम। 9 है टोटल, 9 के 9 देखेंगे क्विकली। देखते हैं आज कितने हो जाएंगे, कोशिश करेंगे 9 के 9 आज ही खत्म करें ताकि हम कल से इसको डिटेल में पढ़े। इफ यू अटेंड दिस सेशन यू वुड हैव बाय द एंड ऑफ इट नोन एवरीथिंग अबाउट इंडियन फिलॉसफी सुपरफिशियली। So this becomes a very important session. Okay, पहले हम स्टार्ट करते हैं चारवाक से। चारवाक सिस्टम ये पहला फिलोसॉफिकल, पहला इन द सेंस मतलब पहला हम इसको देख रहे हैं, कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है हमने ये पढ़ा। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा कि इट्स नॉट लाइक देयर इज अ प्रॉपर लीनियर अरेंजमेंट नहीं। चारवाक हिंदुस्तानी फलसफे में इट मींस मटेरियलिस्ट स्कूल। चारवाक्स का फंडामेंटल एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट है परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स नॉलेज इज सेंसुअल, सेंसेस से नॉलेज मिलता है। यू हियर इट, यू आइदर स्मेल इट, यू आइदर टेस्ट इट, यू आइदर फील इट, ठीक, ये सारी चीजें, यू आइदर सी इट। ये कहते हैं कि नॉन परसेप्चुअल या इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज जैसे इन्फरेंस है या किसी की टेस्टिमनी है, ये अनरिलायबल है, मिसलीडिंग भी हो सकती है। क्लासिकल एग्जाम्पल रोप और स्नेक का है और एक है आग और धुएं का। ये बार बार आएंगे। ये जो ये रोप स्नेक वाला एग्जाम्पल है और आग धुएं का एग्जाम्पल है, ये आपको लगभग हर एक स्कूल ये देगा ये एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड वन और द अदर। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बेसिक आप ये समझिए, आपने पहाड़ पे एक धुआं देखा उठते हुए, आपने धुएं से ये इन्फर किया कि आग होगी। आपने धुएं से ये इन्फर किया कि आग होगी। चारवाक कहता है ये जो आपने काम किया, धुआं है, ये तो सही इल्म है, दिस इज करेक्ट नॉलेज, क्योंकि ये परसीव्ड नॉलेज है। लेकिन कि आग है वो आपने बिना देखे इन्फर किया, दिस इज अनरिलायबल नॉलेज। आग वहाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो। चारवाक कहता है कि ये वाला इल्म जो आपने अख्ज़ किया ये इन्फरेंशियल है, ये सेंसुअल नहीं है और इट कैन बी मिसलीडिंग। वी शुड देयरफॉर क्या करना चाहिए, हमको ऐसे ही नहीं कोई भी चीज यकीन उस पर करना चाहिए। वी शुड ओनली बिलीव थ्रू परसेप्शन। किसी भी चीज परसेप्शन पे आप यूजुअली यू थिंक अबाउट विजुअल परसेप्शन, परसेप्शन में बहुत सारी चीजें आएंगी, आवाज भी परसेप्शन में आएगी, टेस्ट भी परसेप्शन में आएगा। और अब अगर एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड आपका परसेप्शन है, अब इसका नेसेसरी कंक्लूजन क्या होगा? अगर आपने ये बोला कि परसेप्शन ही है बस एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, देन द वर्ल्ड ओनली कैन बी मटीरियल। इममटीरियल चीज परसीव हो नहीं सकती। एंड मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ, whenever you wish to learn a school, become that school. अभी 2 मिनट के लिए सब लोग चारवाक बन जाओ, start feeling like that person. अब ये बंदा मैं सुल्काक नहीं मानने को तैयार, बिना देखे चीज, बिना सुनी चीज, ठीक, I only believe in perception, तो obviously metaphysical realities मेरे लिए खत्म हो गई। केड़ा भगवान, कौन सा खुदा, कहाँ है, दिखाओ, दिखाओगे तो मानूंगा, नहीं दिखा सकते तो चुप हो जाओ। देखो भाई, आई गिव यू ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, नहीं आप प्रूफ रखे अपने पर, मुझे नहीं चाहिए। दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते तो दफा हो जाओ। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज थिंकिंग। ही इज थिंकिंग कि आपने जो इन्फरेंस की, इसमें कुछ इश्यूज हैं, इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, वो बताएगा आगे, प्रॉब्लम्स ऑफ व्याप्ति वो बताएगा। लेकिन आप अभी 2 मिनट के लिए थिंक लाइक ए चारवाक। तो वो कहता है कि दुनिया तब सिर्फ क्या होगी, मटेरियल होगी। इममटेरियल दुनिया कोई नहीं है।
और फिर जब वो उसको डिस्क्राइब करता है 4 भागों का बना होता है। सो द यूनिवर्स इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इसको आप ये नहीं समझना जो आप एयर देखते हो, आग देखते हो। थिंक ऑफ दीज एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विच एवरीथिंग इज मेड। एक एटम जो होगा वो भी इन्हीं 4 के डिफरेंट किसी मिश्रण से बना होगा। जो एटम होगा फाइनली इन इटसेल्फ, वो भी इन 4 के इन वन वे और अदर वे के एडिशन से बना होगा। पानी जो आप पीते हैं वो भी इन 4 के इन ए पर्टिकुलर वे पे, ये 4 जब ऐड होंगे तो आपके सामने वाला जो पानी है वो बनेगा। और ये 4 क्यों? क्योंकि ये 4 हम डायरेक्टली अपनी सेंसेस से देख पाते हैं, और जितना भी परसेप्चुअल वर्ल्ड है वो इन्हीं 4 का बना हुआ है। इसके आगे कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज की। शाकिर पूछता है सोल, क्या देगा 4 बार जवाब? टेढ़ी सोल। किसकी सोल? कहाँ की सोल? तुमने देखी है सोल? मैंने तो नहीं देखी, तो होती नहीं हो। So there is no soul. Man is also wholly made of what? Matter. We say, I am stout, I am lean, I am lame, I am intelligent. ये जजमेंट्स क्या दिखाती हैं? ये जजमेंट्स दिखाती हैं ये जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, इट्स आइडेंटिकल विद माई बॉडी, ये कोटर्मिनस है विद माई बॉडी। हाँ, ये बात सच है, हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैं फील कर रहा हूँ अपनी कॉन्शियसनेस को। लेकिन कॉन्शियसनेस क्वालिटी है लिविंग बॉडी की, जो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैटर है। कोई नई तोप नहीं है आपके अंदर, कुछ कोई रूह नहीं है, कुछ नहीं है। It is just the matter has come in such a configuration together that you feel the consciousness. Otherwise कोई नई चीज, imperceptible चीज नहीं आई। It should not be thought that because the elements of matter are unconscious, so there can be no consciousness. ये भी नहीं सोचना है। क्या आपने तो भाई साहब बोला like creates like, तो एयर, फायर, वाटर और अर्थ में अलग अलग तो है नहीं कॉन्शियसनेस, लेकिन ये 4 के मिलने से जो इंसान बना उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। वाह, ये कैसे बोल दिया? तो हमारा ये मानना नहीं है। फिर हमारा क्या मानना है कि ये नहीं सोचना आप कि ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये अनकॉन्शियस है और मिलके अनकॉन्शियस ही बनाएंगे। नो, हमारे पास बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ बिल्कुल इमटेरियल चीजें मिलकर कुछ मटेरियल बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट चीजें मिलकर कोई डिफरेंट चीज बनाती है। आप जैसे दही पियो और थोड़ा सा पुदीना खाओ, साथ में थोड़ा सा मटन, इलायची वो ऐड करो, तो आपको यखनी का टेस्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। उसको एक पर्टिकुलर टाइप में मिलाएंगे फिर खाएंगे तो यखनी का टेस्ट आएगा। आप बीटल लीफ, नट, लाइम, इसको इफ यू च्यू देम टुगेदर यू विल गेट द रेड टिंज। जो आपने वो देखा होगा, जो पान चबाते हैं तो देयर इज दैट रेडिश थिंग दैट कम्स। लेकिन अगर आप उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखोगे, किसी में कोई रेड चीज नहीं है, देयर इज नथिंग रेड इन देम। तो ये कहाँ से आया था? मोलेसिस एक्वायर बाय फर्मेंटेशन द पावर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो ओरिजिनल में नहीं है। ओरिजिनल में तो कोई फर्मेंटिंग पावर नहीं था। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि अनकॉन्शियस से अनकॉन्शियस ही होगा। अनकॉन्शियस चीजें एक पर्टिकुलर वे में जब ऐड होंगी तो वो कॉन्शियसनेस पैदा कर सकती है। सिमिलरली द एलिमेंट्स ऑफ मैटर कंबाइंड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे दे गिव राइज टू लिविंग बॉडी। इसमें कोई रूह का जबरदस्ती कंसेप्ट लाने की जरूरत है नहीं। कॉन्शियसनेस सीजेस इमीडिएटली जब बॉडी भी खत्म हो जाती है। जब कोई इंसान मर जाता है, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू एंजॉय और सफर। तो इसका मतलब कोई आखिरत भी नहीं है, देयर इज नो डे ऑफ जजमेंट। तो इसका मतलब कोई रिबर्थ भी नहीं है। रिबर्थ होगी किसकी? कोई रूह ही नहीं है। सो दिस सर्वाइवल ऑफ मैन इन एनी फॉर्म ऑफ आफ्टर डेथ इज अनप्रूव्ड। या आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये है नहीं कुछ। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कौन सा गॉड? कहाँ का गॉड? कोई गॉड है ही नहीं, दिखाई नहीं हमको कभी, ना परसीव किया। ये भी एक मिथ है।
God cannot be perceived, therefore does not exist. तो ये दुनिया किसने बनाई? इसने क्या बनाई? खुद बनी. इसमें क्या है? Automatic combination of material elements. They came together in one form or another and ये बन गई. It is foolish. इसीलिए ये बेवकूफ़ी है कि आप नमाजें पढ़ोगे, आप हज पे जाओगे, आप आहुति दोगे, बलिदान करोगे, आप रिचुअल करोगे. उससे क्या होगा? किसको खुश कर रहे? कोई है ही नहीं जो खुश होगा. There is no God who you want to impress. तो इसकी वजह से there is no happiness after this life in heaven and there is no pain after this life in hell. Similarly, there is no need to please God because He does not exist. And no faith should be put in the Vedas. वेदा पे भी क्या है कि ये क्या है? किसी इंसान ने लिखा हुआ किताब है, खत्म. इसके अलावा इसकी कोई हस्ती नहीं है. वेदा भी हम नहीं मानते. और ये जो ये वेद पढ़ाने वाले प्रीस्ट्स हैं, these cunning priests, वो क्या करते हैं? वो इंसान की क्रेडिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर क्या खुद ब्राह्मण बन के ये चीजें सामग्री वगैरह समेट लेते हैं, अपने उनके दिन अच्छे से कटते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं. तो कोई इन कनिंग प्रीस्ट्स और वेदास की आपको सुनने की जरूरत है नहीं. तो भाई साहब, ये जीना किस लिए है हमको? व्हाट इज द हाईएस्ट एंड ऑफ माई लाइफ? सिंपल है, एंजॉय टू द ग्रेटेस्ट. इस हद तक हो सकता है. एंजॉय करो, एंजॉयमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर हियर इन दिस लाइफ. क्योंकि आपके पास यही है जो है, इसके बाद आप गए खत्म सब कुछ. इट इज फूलिश टू फॉरगो द प्लेजर्स ऑफ लाइफ सिंपली बिकॉज दे हैपन टू बी मिक्स्ड विद पेन. अब इस दुनिया में तो दुख भी है, तो दुख है, इसकी वजह से भी बेवकूफ़ी है क्या जितना सुख है उसको भी आप अब कैंसिल कर दो. नो, it would be as though one would reject the kernel because of its husk or cease sowing crops for the fear of cattle. We should try to get the best out of this life by enjoying it as best as we can and avoiding as far as possible the chances of life. तो क्या होगी चार्वाक एथिक्स? कि चांसेस ऑफ पेन को मिनिमाइज करो और चांसेस ऑफ एंजॉयमेंट, प्लेजर को मैक्सिमाइज. ये हो गया ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ चार्वाक. ये नास्तिक स्कूल था, देखा आपने, इसने वेदा रिजेक्ट किया. दूसरा भी नास्तिक ही है, जैन. आप जानते होंगे महावीर तीर्थंकर. वी कंसिडर हिम टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट दैट्स नॉट हाउ Jains look at it. For Jains, he was the last तीर्थंकर. इसको आप आसानी से समझेंगे, मुसलमान के लिए बड़ा इजी है समझना. जैसे we don't consider Prophet Muhammad to be the founder of Islam, right? We don't consider him to be the founder. We consider him to be the last of the chain of prophets. ठीक, उससे पहले Jesus was also the prophet of same religion. Moses was also. This is our belief. Similarly, Jains, आपको ऐसा लगता होगा कि महावीर तीर्थंकर is the founder of Jainism, but that's not how Jains view. There are 24 such तीर्थंकर्स and he is the 24th. If I am not mistaken, उनसे पहले वाले तीर्थंकर थे पारसनाथ या ऋषभ, आई एम नॉट श्योर, दोनों में से एक या फिर कोई और. पारसनाथ शायद या फिर ऋषभ. और जैन इनके लिए it comes from the word jinn or the Arabic jinn. It's यहाँ की हिंदुस्तानी लैंग्वेज का jinn. तो and it's also like the prophet word is for us एक उपाधि type. It's a status which you reach. It's a sect as a status you reach. So जैन सिस्टम क्या है? कहते हैं कि इस वाले स्कूल का भी अगर आप जाएं, जायजा करें, तो it also dates back to prehistoric times. कहते हैं long line of teachers जिनने ये इल्म को आगे आगे बढ़ाया. 24 तीर्थंकर कहते हैं ये. तीर्थंकर का मतलब liberated propagators of faith. अब महावीर जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है वर्धमान महावीर. He was a contemporary of गौतम बुद्ध के वो कंटेम्पररी थी वर्धमान महावीर. जैन क्या है? जैन क्या कहते हैं? ये तो पहले रिजेक्ट कर देते हैं चारवाक का व्यू, दैट परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज.
अभी हम 2 मिनट के लिए जैन बनेंगे इसको समझने के लिए कि हम नहीं मानते, I don't accept that perception is the only way of knowing the reality. जैन क्या कहते हैं? They point out that if we are to reject altogether the possibility of obtaining correct knowledge through inference, अगर हमने full fledged inference को reject कर दिया, या अगर हमने testimony of other persons को full fledged reject कर दिया, और simply because कभी कभी ये misleading होती है, कभी कभी आपको you see it as a snake but it was a rope, तो परसेप्शन चारवाक कहता है ये देखो, ये जैन कहता है ये देखो परसेप्शन में तो गलती होगी। अगर हम सिंपली इस बेसिस पे रिजेक्ट करें, इवन परसेप्शन बिकम्स इल्यूजनरी। अगर हम इन्फरेंस को रिजेक्ट करें इस ये कह के कि समटाइम्स इन्फरेंस इज रॉन्ग विच इज ट्रू, तो जैन कहते हैं तो भाई साहब परसेप्शन कैन आल्सो बी रॉन्ग। आपने परसीव की एक चीज थी दूसरी चीज, लाइट कम थी आपको लगा सांप है, सांप था नहीं, रोप थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, चारवाक साहब आप तो खुद हेल्प ऑफ इन्फरेंस ले रहे हैं। When by observing some cases of inference to be misleading, you hold on inferences to be misleading. ये भी तो इन्फरेंस है, आपने थोड़ी सारी इन्फरेंसेस चेक की, वैलिड है इनवैलिड, आपने कुछ चेक की जो आपने परसीव की गलत है। उस परसेप्शन से आप आगे कैसे बढ़े ये कहने में कि ऑल इन्फरेंस रॉन्ग? आपने खुद इन्फरेंस यूज की। एंड ऑल्सो व्हेन यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर नॉट परसीव्ड, the Jains admit कि in addition to perception, inference और testimony दोनों valid sources of knowledge है। कि perception तो है valid source of knowledge, लेकिन inference और testimony भी है। inference के rules हैं, ये तभी valid knowledge yield करेगी when it obeys the logical rules of correctness। जैसे लैंग्वेज तभी मीनिंग को आगे कन्वे करेगी व्हेन यू फॉलो द नेसेसरी रूल्स ऑफ ग्रामर। लैंग्वेज तभी, अगर ऐसे मैं कोई भी सेंटेंस बोल दूं, लाइफ रैशनल देयरफॉर हाईएस्ट फॉर एक्ट शुड, कुछ नहीं समझे बिकॉज रूल नहीं फॉलो हुआ, कोई मीनिंग कन्वे नहीं हुई। अगर मैं ग्रामर के रूल ऑफ फॉलो करूं, द हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ फॉर ए रैशनल मैन शुड बी एंजॉयमेंट। अब अगर ये सेंटेंस मैंने ग्रामर के लॉज यूज करके ये किया, अब आप इसका मतलब समझ गए। सिमिलरली जैन कहते हैं कि ये जो चारवाक ने क्रिटिसाइज किया इसको इन्फरेंस को, ये तब होता है जब आप लॉजिक के रूल्स फॉलो नहीं करते। जब आप लॉजिक के रूल्स फॉलो करोगे तो ये वाले मसले उठेंगे नहीं। सो इन्फरेंस वुड यील्ड वैलिड नॉलेज व्हेन यू फॉलो द लॉजिकल रूल्स ऑफ करेक्टनेस। अब बचा तीसरा, टेस्टिमनी। टेस्टिमनी इज वैलिड एक शर्त पे, जब एक कोई रिलायबल अथॉरिटी पास ऑन करे। तो इसी बलबूते पे जेन्स होल्ड दैट इट इज ऑन द अथॉरिटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ ओमनिशिएंट लिबरेटेड सेंट्स, जिनको तीर्थंकर कहते हैं, दैट वी कैन हैव अनएरिंग नॉलेज अबाउट सर्टेन स्पिरिचुअल मैटर्स। बिकॉज ये रियलाइज्ड महापुरुष है, ये रियलाइज्ड महापुरुष है, इन्होंने केवल ज्ञान हासिल किया है। आप इनका बराह रास्त उस इल्म के साथ जा बजा उस इल्म के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। सो वी कैन ट्रस्ट देयर टेस्टिमनी। हमारा तो लिमिटेड परसेप्शन है, हमारी रीजनिंग लिमिटेड है, वो हकीकतें हम नहीं देख सकते। इसका पैरेलल ये बहुत इजी है किसी थीस्ट के लिए समझना। कोई एथियस्ट कर सकता है इस पे आर्ग्यू, बट एक थीस्ट के लिए कोई मुश्किल नहीं है समझना। The way we believe that Prophet Muhammad saw certain things which we might not be able to see, and we trust his testimony on that. तो ये वैसी ही बात हो रही कि ये जो रियलाइज्ड महापुरुष हैं, इन्होंने इस चीज को देखा, हम इन पे यकीन कर सकते हैं। ओके, तो 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज हो गए जैन्स के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज, जब इल्म की बेसिस सेट हो गई, चारवाक ने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, तो उसके बेसिस पे रियलिटी मटीरियलिस्टिक हो गई।
रियलिटी सिर्फ मटेरियल होगा, सोल तो दिख नहीं रहा, भगवान तो दिख नहीं रहा, ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे जब इसमें ऐड हुए और दो सोर्सेस, तो इससे क्या बनेगा वर्ल्ड व्यू, देखते हैं। परसेप्शन से पहले तो हमको पता चलता है रियलिटी ऑफ मटेरियल सबस्टेंस। ये टेबल, ये बुक, ये पेन, मेरा होना, ये सारी कायनात जो हमारे सामने है, ये हमको दिखती है कि ये है। और परसेप्शन का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता है, मैंने बार बार बोला, सुनना, टेस्ट करना, ये सारी चीजें परसेप्शन में आएंगी। 4 चीजों का बना है ये, चारवाक भी बोल रहे थे 4 चीजों का बना है। और इन्फरेंस से कहते हैं 4 के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आकाश, स्पेस, बिकॉज मटीरियल सबस्टेंस मस्ट एग्जिस्ट समवेयर। भाई साहब, ये पेन है तो है कहाँ पे, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, सो स्पेस मस्ट एग्जिस्ट। स्पेस दिखी नहीं, स्पेस परसीव नहीं की, इन्फर की। और भाई साहब, ये पेन है तो यहाँ कब, कब यहाँ पे है, व्हेन, yesterday, tomorrow, today, when, so there must be time, काल, वक्त भी होगा ही होगा। तो ये इन्फर के, देखा नहीं, you don't see time, you don't hear time, you don't taste time, but you inferred time. It because changes of succession of states of substances cannot be understood without time. इसके अलावा they also believe in 2 causes of motion and rest respectively. ये 2 causes, motion है, इसका शायद वो वर्ड यूज करते हैं धर्म। हम देखेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू कर रहे हैं सो दैट यू गेट द बेसिक टेस्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब ये क्यों जरूरत है, ये क्यों जरूरत है, ये इसलिए जरूरत है फॉर विदाउट देम मोमेंट एंड सेसेशन ऑफ मोमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो इनको धर्म और अधर्म कहते हैं, हाँ यही है। लास्ट वर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली धर्म एंड अधर्म, which should not be taken here in the ordinary moral sense. जैसे मेन स्ट्रीम हिंदू में धर्म और अधर्म को समझा जाता है, इसको वैसे नहीं समझना है। This is motion and absence of it. But the absence of it is, absence of motion is in itself a metaphysical reality. It's something else. It has its own existence. ये ऐसा नहीं है कि absence of light is darkness. ये वैसे नहीं कह रहे, अधर्म को ये एक स्पेशल कैटेगरी मानते हैं। But in the technical sense of causes of motion and causes of rest. Adharm causes rest, dharm causes motion, ऐसे है। But the physical world जो 4 एलिमेंट्स की बनी है, 4 elements of matter, और किसकी बनी है, स्पेस, टाइम, धर्म और अधर्म, दिस इज नॉट ऑल। चारवाक के लिए फिजिकल वर्ल्ड वाज ऑल, लेकिन जैन के लिए ये इतना ही नहीं है। Perception as well as inference proves the existence of soul. ये रूह भी कोई चीज है। There is something called soul. क्या कहा जैन ने? Our perception and our inference proves it कि ये भी exist करती है। When we perceive the qualities of an orange, जैसे उसका color, उसकी shape, उसकी एक particular type of smell, we say we perceive the existence of an orange. On the similar ground, when we internally perceive pleasure, pain, and other qualities of the soul, we must admit that the soul is also directly known through perception. ये perception बाहर का नहीं है, it's internal perception, but perception nonetheless. We perceive the existence of soul. Consciousness, क्या बोला था चारवाक ने? कि ये मैटर का ही एक क्वालिटी है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जैन कहते हैं नहीं, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। कहते द चारवाक कैन नॉट पॉइंट आउट एनी केस, चारवाक कैन नॉट पॉइंट आउट एनी केस ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल सबस्टेंस जहां पे मटीरियल सबस्टेंस को एक करके कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस की गई। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स जब इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, ये मैटर की प्रोडक्शन नहीं है। कहते हैं कि और भी तरीके हैं इन्फर करने के कि सोल एग्जिस्ट करती है। इफ देयर हैड बीन नो कॉन्शियस एजेंट टू गाइड देम, मटीरियल सबस्टेंस कुड नॉट बी फॉर्म्ड इनटू लिविंग बॉडीज बाय देमसेल्व्स। सो देयर हैज टू बी सम गाइडेंस टू इवॉल्व इनटू समथिंग लाइफ। द एवोल्यूशन हैज टू बी गाइडेड।
खुद से उनमें कॉन्शियसनेस है नहीं इसको प्रोड्यूस करने की. विदाउट ए कॉन्शियस सबस्टेंस टू रेगुलेट देम, द बॉडी एंड द सेंसेस ये कभी सिस्टमेटिकली काम करती ही नहीं. There has to be a coordinator which coordinates them all. कितने सोल है? एक ही सोल है? सबका एक ही सोल है क्या? या सोल की क्या व्याख्या है? और व्हाट्स द डिटेल ऑफ सोल? जैन कहते हैं कि भाई साहब सोल तो उतने हैं जितनी बॉडीज हैं. So there are as many souls as there are living bodies. और ऐसा इतना ही नहीं कि सिर्फ इंसानों में सोल है. जियो these souls, these exist not just in humans, जानवरों में भी soul है, and not just in animal, plants में भी soul है, and not just in plants, even the things which you consider non-living उसमें भी soul है. So even particles of dust have soul. Everything has a soul. What a beautiful idea. अब we can dwell on it for a day कि कितना खूबसूरत आइडिया है. And everything, this pen and how much, मतलब आप देखो इसको अप्रिशिएट करो 2 मिनट के लिए कि जैन वे ऑफ लाइफ कितना खूबसूरत हो सकता है इसके बाद, कि वो कितने खूबसूरती से हर एक चीज को ट्रीट करेंगे. Because this pen also has life. So how beautifully will you treat the pen now? So even the particles of dust. So the existence of these very minute living beings such as germs in dust and जो apparently आपके लिए non-living material things है, इसको modern science भी accept करती है. ये जो modern science वाली statement है ना, always take them with a pinch of salt, because ये हर जगह ये मसला है. आप जाकिर नायक को पढ़ेंगे तो हर एक कुरान की आयत में साइंस है. आप विलियम कैम्पबेल को पढ़ोगे तो बाइबल की हर एक आयत में साइंस है. सिमिलरली आप इनको पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा. एवरीवन वांट्स टू डू इट बिकॉज इस वक्त गलबा दुनिया में मॉडर्न साइंस का है. एवरीवन वांट्स टू से नहीं मेरी यहाँ सब कुछ है. तो ऑलवेज टेक इट विद. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दिस डज नॉट इन एनी वे मीन कि नहीं है, हो भी सकता है, बट इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए हमेशा. और दूसरा पिटफॉल टू अवॉइड, ये करने की भी जरूरत नहीं है कि उनके पास नहीं है, ये बाइबल में हो ही नहीं सकता कुछ साइंटिफिक. हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुरान में भी हो सकता है, गीता भगवत गीता वेदा में भी हो सकता है. So there is nothing wrong with that, but take it with a pinch of salt. अगर आपको कोई बार बार बोल रहा है कि कुरान में ये है, कुरान में वो है, take it with a pinch of salt. Can be, cannot be. Most of the time तो होता नहीं है, but that holds true for any other scripture as well. अब तब अगर हर एक चीज में रूह है, अब अगर हर एक चीज में सोल है, तो भाई साहब ये डिफरेंसेस मैं सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, फील कर पाता हूँ, चल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, हर एक चीज. पर सेम इज नॉट विद द केस विद एनिमल्स. डिफरेंस तो है. और फिर एनिमल से एक स्टेप आगे जाए प्लांट्स, और भी डिफरेंस है. फिर उसके बाद आप नॉन लिविंग थिंग पे जाइए, ग्लास, ये मग, ये लैपटॉप, कैसे कह सकते हैं सेम है? तो जैन वुड आंसर कि नहीं, सेम नहीं है. सभी सोल्स सेम नहीं है. सभी सोल्स में इक्वल लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं है. जैसे प्लांट्स या डस्ट या पेन, ये सारी चीजें, दे हैव ओनली द सेंस ऑफ टच एंड हैव फैक्चुअल कॉन्शियसनेस अलोन. इसके अलावा इनके पास नहीं है. सो दे हैव ओनली 2 सेंसेस. सम लोअर एनिमल्स आल्सो हैव ओनली 2 सेंसेस. इससे आगे 3 सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उससे आगे 4 सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इंसान and some higher animals you will find 5 senses. This creates difference between all of us. लेकिन कितने भी आपकी सेंसेस डेवलप हो, किस हद की भी आपकी सेंसेस डेवलप हो, soul is still in bondage. Soul is still in bondage. और इसका necessary result ये है कि your knowledge will always be limited. It is limited in its power and capability, and therefore is the subject of all kind of miseries. लेकिन soul की essence क्या है? It can attain infinite consciousness. It can attain power. It can attain happiness. मैंने आपको कल भी ये बताया कि अगर यहीं पे रुक जाते, then it would be called a pessimistic school.
जो वेस्टर्न चार्ज है इंडियन फिलॉसफी पे कि ये पेसिमिस्टिक है, वो तब होता जब ये यहीं पे रुक जाता, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुका और हर एक स्कूल आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, आगे बोलेगा कि नो, यू आर केपेबल ऑफ कॉन्शियसनेस, you are capable of power, and you are capable of happiness. If you are capable of this, all of a sudden you are not pessimist, you are an optimist now. That means, okay, fine, I have a disease, but I can get cured as well. And which is true. जबरदस्ती जिंदगी में मिजरी है, आप बोले कि जिंदगी में मिजरी नहीं है. To solve any problem, the first step is to recognize one. आप recognize ही नहीं करना चाहते उसको, फिर कहें खुद को optimistic, ये सही बात नहीं है. बेहतर है कि आप उसको बताएं कि हाँ भाई, सर्वम दुखम है प्रॉब्लम, डेथ इज अ प्रॉब्लम, गरीबी इज अ प्रॉब्लम, इलनेस इज अ प्रॉब्लम. बट अगर आप वहीं पे रुके और रोते रहे इस बारे में, देन यू विल बी पेसिमिस्ट. लेकिन जब आप आगे बढ़ के कहते हैं कि आप इसको सरपास कर सकते हैं, देन यू आर नॉट अ पेसिमिस्ट, देन यू आर करेजियस. सो इंडियन सिस्टम्स वुड बी कॉल्ड करेजियस सिस्टम, that they accept on the face of it कि हाँ there is misery, but वो आगे निकलते हैं उसके कि this misery can be overcome. तो जैन भी यही कह रहे हैं कि you can attain infinite consciousness and happiness. These qualities are inherent in every nature of the soul. ये आप सबके अंदर मौजूद है ये कैपेबिलिटी. अलबत्ता आप क्यों नहीं ये कैपेबल हैं तब फिजिकली? अगर आपके अंदर ये पोटेंशियलिटी है तो एक्चुअलिटी क्यों नहीं है? If you have the potential to reach for the sky, why are you not able to? So the Jain answers, कर्म. Your कर्म obstructive. आपके कर्म आपको obstruct करते हैं. Just as the natural light of the sun is obstructed by clouds. जैसे clouds sunlight को obstruct करते हैं, वैसे ही आपके कर्म obstruct करते हैं. कर्म, these are forces of passion and desire, जो हर सोल में है. ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं particles of matter which permeate the souls, जैसे particles of dust permeate the light. क्या होता है? These कर्म, these lead to the bondage of the soul by matter. ये कर्म के जो कण हैं, ये आपके सोल के साथ जुड़ जाते हैं और your soul is then bound to matter. तो सर अब क्या करें? कैसे फ्री हो जाएं? रिमूव करो ये कर्म कण, अपने सोल से इसको अलग करो. सर क्या ये पॉसिबल है? अगर ये यहाँ पे रुक जाते तो पेसिमिस्ट हो जाते कि ये इम्पॉसिबल है. नहीं, कहते ये पॉसिबल है. A soul can remove itself from the bondage and regain its perfection. So this is in nutshell their philosophy. फिर ये आगे जब उस पर बढ़ते हैं तो उसके एथिक्स डेवलप होंगे. आप क्या कहेंगे? The teachings and lives of the liberated saints, जिनको तीर्थंकर कहते हैं, they prove कि liberation is possible, और उनकी जिंदगी खुद में एक प्रूफ है कि how to do it. So the way Mahavir Tirthankar was able to do it, that's what you have to do. He will give you the path, you follow that path, you will also find the truth. कहते 3 चीजें जरूरी है. अब देखिए पूरा सीक्वेंस आप क्लियर हो गया. एपिस्टेमोलॉजी से मेटाफिजिक्स डिराइव हुई, करनी क्यों पड़ी? सो दैट यू डिराइव योर एथिक्स. अब एथिक्स पे बात होगी. 3 things are necessary for the removal of bondage. क्या? Perfect faith. Perfect faith in the teachings of Jain teachers. मैंने आपको ये पहले भी बोला कि महावीर तीर्थंकर आखिरी तीर्थंकर थे, पहले नहीं. हमारे लिए हो सकते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट दैट्स नॉट हाउ जैन्स व्यू इट. फॉर देम ही वाज द लास्ट टीचर. इन द टीचिंग्स ऑफ जैन टीचर्स, करेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचिंग्स. पहले तो उस पर फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका इल्म भी तो होना चाहिए. आपको पूरा यकीन है महावीर तीर्थंकर पे, फिर इसके बाद आपको पता भी तो होनी चाहिए उन्होंने पढ़ाया क्या, उन्होंने बोला क्या. करेक्ट नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए. और तीसरा, राइट कंडक्ट. नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज अकेले कुछ नहीं कर सकते. फेथ एंड वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो 3 चीजें, इसको त्रिरत्न बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाई ही हैजंट यूज्ड द वर्ड. दीज 3, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. दीज 3 things.
ये आपको पैरेलली मिलेगा हर जगह इन डिफरेंट वर्ड्स एंड फॉर्म्स। जो आपको 8 मिलेंगे बुद्धा के, आपको ये हर जगह मिलेंगे ऐसे। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट क्या है सर? राइट कंडक्ट consists practice of abstinence from all injury to life, ahimsa. All injury to life you have to shun. इसीलिए आप देखेंगे Jains are the most strict in this aspect. बहुत strict हैं वो इस aspect। दूसरा from falsehood, झूठ, फरेब, इस सब से। from stealing, from sensuality, ये ब्रह्मचार्य का कंसेप्ट उनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग। फ्रॉम सेंसुअलिटी, फ्रॉम अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स। बाय द जॉइंट कल्चर ऑफ राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट क्या होगा? आपके पैशंस कंट्रोल होंगे। नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। और जो कर्म है, कर्म कर्ण जिसने आपकी सोल को जकड़ के रखा था, अब वो आज़ाद होगा उससे, क्योंकि वो पार्टिकल्स धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे। जब ये ऑब्स्टेकल रिमूव हो गए तो क्या होगा? सोल वुड अटेन इट्स नेचुरल परफेक्शन, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर एंड इनफाइनाइट ब्लिस। ये है स्टेट ऑफ लिबरेशन, ये है आपका जन्नत, यही है दिस स्टेट ऑफ बीइंग इन इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर। दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज समम बोनम ऑफ लाइफ। अब आपने इस पूरे में देखा होगा कहीं खुदा का कंसेप्ट नहीं आया। आपने देखा होगा इस पूरे में गॉड डिड नॉट कम एनीवेयर। सो दैट वुड टेल यू Jain school is an atheistic school of thought. It's an atheistic school of thought. So they do not believe in God. ये जो तीर्थंकर हैं, जिनको मतलब महावीर जी, जिनको सारे पावर्स लाइक ओमनिशंस, ओमनिपोटेंस है, they take the place of God. वो एक तरीके के खुदा बन जाते हैं, वही आपको दिखेगा. They are adorned as the ideals of life. इस सब के बाद अब थोड़ा सा मार्केट प्लेस में जब आप जेन्स को देखेंगे आप, so you would see their world view to be highly sympathetic. एक सिंपैथी उनके रिलीजन का एक कोर बन जाता है. सिंपैथी becomes one of the core aspects of their religion. इसके अलावा जब आपका ये एस्पेक्ट होगा, नेसेसरीली आप दूसरे के ओपिनियन की रेस्पेक्ट करेंगे. ये रेस्पेक्ट फॉर ऑल ओपिनियंस. और यहाँ से और एक इन्होंने डिस्क्राइब तो किया नहीं है, अब मतलब आई एम श्योर जहाँ पे आगे जैन फिलॉसफी को डिटेल में बोलेंगे वहाँ पे ये फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे उनका ओपिनियन अबाउट जजमेंट, हाउ देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट एंड हाउ एवरी जजमेंट इज रिलेटिव. हर एक जजमेंट कैसे रिलेटिव होती है वो आप देखेंगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी इनकी पढ़ेंगे. So the Jain philosophers point out कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसके इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं. आप भाई साहब लिमिटेड हैं, यू आर ए बॉन्डेड सोल, आप बॉन्डेज में है. चीज इनफाइनाइट है, आप फाइनाइट है, तो आप कभी इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स जान नहीं सकते. तो इसीलिए जो भी आप जजमेंट पास करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी दिखते हैं. एवरी जजमेंट दैट वी ऑर्डिनरीली पास अबाउट अ थिंग इज देयरफॉर ट्रू ओनली इन रिलेशन टू योर पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो इसीलिए वो वर्ड एक यूज करते हैं स्याद का, आएगा जब हम पढ़ेंगे. व्हेनेवर दे मेक अ जजमेंट दे आर लाइक प्रोबेबली. सो यू विल आस्क अ जैन, स्ट्रिक्टली इफ यू आस्क अ जैन इज दिस अ पेन, ही विल रिप्लाई प्रोबेबली इट्स अ पेन. Is this a book? He would say probably it's a book. We should remember therefore the limited nature of our knowledge and judgment and should refrain from thinking that any view is whole truth and absolute. तो इसकी वजह से highly pluralistic view of world comes into being. We should guard and qualify our own statements. Also learn to appreciate the possibility of correctness of other ideas. तो जैन फिलॉसफी एक रियलिज्म की फिलॉसफी है, क्योंकि ये बाहर की रियलिटी को एक्सेप्ट करती है.
और ये प्लूरलिस्टिक है क्योंकि ये इट बिलीव्स इन मेनी अल्टीमेट रियलिटीज, और ये एथियस्टिक है बिकॉज इट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सो यू कैन रिमेंबर Jains as what? Realists, pluralists and atheists. ये हो गया जैन स्कूल. अब देखते हैं क्विकली बुद्धिस्ट स्कूल. इन सबको हम डिटेल में भी देखेंगे, बट दिस इज अ गुड वे. इन्होंने पहले इन सबका ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, फिर आगे जाकर एक एक को डिटेल में डिस्क्राइब किया. अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट स्कूल का ऐसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ये कहाँ से आया है ये वाला स्कूल? लाइक मेनी ऑफ यू विल बी नोइंग, ये स्कूल केम फ्रॉम गौतम बुद्ध. यहाँ पे भी बुद्ध इज अ टाइटल, इट्स नॉट अ नेम प्रॉपर नाउन. गौतम, सिद्धार्थ गौतम नाम था इनका. ये बहुत मशहूर हस्ती है, कोई तारुफ का मोहताज नहीं है. ये एवरीवन नोज दिस पर्सन, गौतम बुद्ध. स्टोरी इनकी मशहूर है. इनका एनकाउंटर जब हुआ विद ह्यूमन सफरिंग, क्या देखा इन्होंने? 4 things: डिजीज, ओल्ड एज, डेथ एंड अदर मिजरीज. ये इन्होंने देखी. देन ही स्पेंट years in study, penance, meditation. इन्होंने की ये देखने के लिए कि हमारी सफरिंग का कॉज क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ आवर सफरिंग. और अगर ये यहीं पे रुकते तो फिर से पेसिमिस्ट हो जाते. लेकिन इन्होंने क्या किया, और मुझे देखना है कि ये सफरिंग खत्म कैसे करूं, हाउ टू ओवरकम दिस सफरिंग. एट लास्ट ही फाउंड द आंसर, दैट यूरेका मूवमेंट, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं. जो इनको हासिल हुआ एनलाइटनमेंट के थ्रू, दैट इज व्हाट वी नो एज द 4 नोबल ट्रुथ्स. क्या है ये 4 नोबल ट्रुथ्स? 4 चीजें इनको पता चली. पहले सर्वम दुखम, भाई साहब मिजरी है. द ट्रुथ इज दैट देयर इज मिजरी, देयर इज सफरिंग. ये हो गया पहला ट्रुथ. दूसरा, दैट ट्रुथ दैट देयर इज अ कॉज टू दिस सफरिंग. There must be a cause to this suffering and there is a cause to this suffering. That's the second truth. Third, and this is where he starts getting optimistic now. अगर वो pessimistic है, लेकिन देखिए अब ये optimistic thought हो. The truth is that there is cessation to misery. ये suffering खत्म हो सकती है. It's not eternal. It can finish. And fourth, that there is a path. कि ऐसा ही नहीं कि ये खत्म हो सकती है लेकिन हमको नहीं पता कैसे. ना, देयर इज अ पाथ. 4 truths. There is suffering, there is a cause to that suffering, this suffering can end and there is a path to that end. ये फर्स्ट ट्रूथ है, ये मैंने आपको बोला आपको हर जगह दिखेगा. ये चारवाक भी एक्सेप्ट करता है, चारवाक भी मिजरी को एक्सेप्ट करता है, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रियलिटी है. जो इसको डिनाई करेगा वो झूठ बोल रहा है. हमको पता ही है थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ जो मिजरी आपको, मतलब फॉर एग्जांपल डेथ, इट्स वन मिजरी व्हिच यू कैन नॉट अवॉइड. डेथ ऑफ द लव्ड वंस. ठीक, माना मैंने कि कभी बीमार नहीं पड़े आप, बट डेथ पे क्या करेंगे, तो उसको आपको फेस करना पड़ेगा. तो हिंदुस्तान में भी सारे फलसफे इसको एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन जो बुद्धा की पेनिट्रेटिंग इनसाइट थी, he saw that misery is not simply causal, it is ordinarily present in all forms of existence and in all kind of experience. It is because of this reason मैं ये translation नहीं मानता सही. ये misery, जो ये दुखा की translation misery है, मैं इसी वजह से नहीं मानता. Because Buddha was able to see it in everything. और हर एक चीज में misery हो नहीं सकती. Everything cannot be full of misery. But in any ways वो बात करेंगे कभी. अभी के लिए, and how do I translate it? I translate it unsatisfactory, not satisfactory, not completely satisfactory. हर एक चीज टेम्पररी, अस्थायी है. तो खैर अभी हम इसी पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि ये कॉजल नहीं है, ये तो हर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस में, हर एक्सपीरियंस में इनबिल्ट है. Even what appears as pleasant is really a source of pain. What appears pleasant is in actuality a source of pain. ये तो हो गया पहले ट्रूथ के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. दूसरा ट्रूथ क्या था? दूसरा ट्रूथ, that there is a cause to our misery.
ये कहाँ से आया? ये आया बुद्धा की डिडक्शन से। कौन सी डिडक्शन? जो उन्होंने कॉजेशन की एनालिसिस की। बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इनकी कॉजेशन की। He points out that the existence of everything in the world, material or mental, is caused by something. This being that is. So without cause, the effect would not come. ये cause and effect भी बड़ा मसला चलेगा इंडियन फिलोसफी में, आगे बहुत बार आएगा। इस पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाएंगे आगे। पर अभी के लिए देखिए, कहते everything is caused by some other thing. So our suffering must have a cause. There is nothing which is unconditional and self-existent. Nothing is therefore permanent. All things are subject to change. और हमारी सफरिंग्स भी सिमिलरली किसी न किसी ने कॉज की है, कोई न कोई कॉज इसका भी रहा है। सफरिंग्स डिपेंड ऑन बर्थ इन दिस वर्ल्ड। सफरिंग डिपेंडेंट है हमारी बर्थ, दैट वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। इस वजह से हमें सफरिंग फेस करनी पड़ रही है। बर्थ अगेन इज कॉज्ड बाय आवर डिजायर। बर्थ क्यों होती है? ये जो वर्ल्डली चीजें हैं, इसके लिए जो हमारे अंदर डिजायर है, दैट लीड्स टू आवर बर्थ, एंड द फोर्स ऑफ डिजायर्स ड्रैग्स अस डाउन टू दिस वर्ल्ड। तो भाई साहब, ये डिजायर हमारे अंदर आती कहाँ से है? इग्नोरेंस। डिजायर्स कैन बी ट्रीटेड एंड ट्रेस्ड अल्टीमेटली टू आवर इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस कैसे खत्म करें? करेक्ट नॉलेज। फाइनली ज्ञान पे आ जाएंगे सब लोग, करेक्ट नॉलेज। इफ वी हैड करेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम उनका ट्रांजिशनरी नेचर समझ पाते, क्षणिकवाद आएगा, या अगर हम उनका पेनफुल नेचर समझ पाते, हमारे अंदर तो डिजायर ही नहीं होती उनके लिए। डिजायर नहीं होती तो बर्थ नहीं होती, बर्थ नहीं होती तो मिजरी नहीं होती। As suffering depends on such conditions, it must cease when the conditions are removed. When the cause would go, the effect would go. ये तीसरा ट्रूथ है। क्या था तीसरा ट्रूथ? There is cessation of misery. So if the cause goes, effect goes. चौथा ट्रूथ उन्होंने बोला था क्या? पाथ का, that there is a path. Fourth truth is there is a path. What path? अब आप वो जो उनका आपने त्रिरत्न समझा था, उसको समझ जाइए। उसमें जो कंडक्ट का था, राइट कंडक्ट, अब देखिए आप वो सिमिलैरिटी दिख जाएगी। ये क्या कहते हैं? देयर इज एन 8-fold नोबल पाथ। 8-fold पाथ है बुद्धा का। राइट व्यू, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एंडेवर, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। जब ये 8 चीजें आपके अंदर होंगी, तो यू विल हैव राइट नॉलेज एंड यूर ignorance would go. These 8 steps remove ignorance and desire. ये enlighten करते हैं आपके mind को, and they bring about perfect equanimity and tranquility in a human being. Thus, misery stops and rebirth stops. और आपको क्या हासिल होता है? निर्वाणा। निर्वाणा is the state of perfection. वो क्या बोलते हैं? इसी चीज को कैवल्य ज्ञान। ठीक, आपको केवल्य हासिल होता है। इन्होंने कहा निर्वाणा। ये बहुत नियर पैरेलल टर्म्स है। मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाणा, these are very parallel terms. They are similar terms. Details भी different हैं, but you understand it. So the teachings of Buddha are contained in the 4 noble truths. It will appear from this that Buddha himself was not concerned so much with the problems of philosophy as such. And this is also true. He was एक existentialist थे एक तरीके के। इनके लिए practical problem of how human misery can be removed, कि भाई साहब वो बाद में कर लेंगे हम पूरा गणित, but my first problem is this, give me a solution to this, and that's what Buddha ये होता है इनका take on all these philosophical problems। उनके सामने आप फलसफे का कोई सवाल लेकर जाते हैं, आप यही जवाब देते कि इसका क्या लेना देना। Does God exist? Buddha would be like, do you suffer? पहले उसको हल कर ले। Buddha would be like that. So he regarded it a waste of time to discuss metaphysical problems. इंसान
तड़प रहा है, मर रहा है, जल रहा है, और आप उसको फिलोसॉफी कराओ, तो ये इस पे हकदार, ये इसमें यकीन नहीं रखते थे। थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन इनने की है खुद भी, बट और necessarily involved philosophical discussions, but the end of his philosophical discussions was to put an end to philosophical discussions. मकसद उनका यही था। Thus we find from early literatures कि theories जो आई हैं क्या हैं वो? All things are conditional. There is nothing that exists by itself. All things are therefore subject to change owing to the change of conditions जिस पे वो depend करते हैं. Nothing is permanent. There is therefore neither any soul nor God nor any other permanent substance. कोई permanent substance है ही नहीं. There is however continuity of present life which generates another life by the law of karma. इनको पूछे जाएंगे, टफ सवाल पूछे जाएंगे इस पे इनको, ये जो आपने सोल को डिनाई किया, बड़े टफ सवाल पूछेंगे, ठीक। ये जो इन्होंने डिनाई कर दिया कंटिन्यूटी को, बड़े टफ सवाल पूछे जाएंगे, देखेंगे ये कैसे टैकल करेंगे। जस्ट एज ए ट्री जनरेट्स अनदर ट्री थ्रू इट्स सीड, द सेकंड कंटिन्यूज विद द फर्स्ट विदरिंग अवे। सोल की कोई जरूरत है नहीं। ये तो थे गौतम बुद्ध, लेकिन बुद्धिस्ट फलसफा एंटायरली गौतम बुद्ध का नहीं है। हमारे पास गौतम बुद्ध का फलसफा डायरेक्टली उनके लिखित चीजों से नहीं पहुंचा। So it came to us through at least 4 schools. हमारे पास 4 schools हैं जिनके थ्रू हमारे पास, जिन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया, एंड they differ, they considerably differ. इसमें पहले तो द माध्यमिक और शून्यवाद स्कूल। इस वाले स्कूल के हिसाब से द वर्ल्ड इज अनरियल, शून्य, मेंटल एंड नॉन मेंटल फेनोमेना आर ऑल इल्यूजरी। ये नाइलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है, शून्यवाद कहते हैं इसको। योगकार ये एक और स्कूल है। दिस होल्ड्स दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर अनरियल, जो बाहर है वो असली में आपके माइंड के आइडियाज हैं। इट्स वेरी नियर टू व्हाट बर्कली सेज। ये जो हमने तोप बना रखा है वेस्ट को, यू वुड रियलाइज वो थॉट्स यहाँ पे बहुत पहले डिस्कस हो रखे। अगेन नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, बट टू लैप ऑन एवरीथिंग दे हैव बीन सेइंग कि यही है भगवान, वेस्ट ही है भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में उन जैसे बहुत सारे लोग हैं और उनसे आगे भी सोचने वाले। बट माइंड मस्ट बी एक्सेप्टेड टू बी रियल। एक बर्कली एग्जैक्टली यही कहते थे, माइंड को रियल एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सबको अनरियल। इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन। ह्यूम ने बोला कि ब्रेन को भी अब काम क्यों बख्श रहे हो, उसको भी खत्म ही कर लो। So it is self-contradictory to say that mind is unreal, for then the very thought that mind is unreal stands self-condemned. Construct its parallel. Who? René Descartes. So what René Descartes is saying is already been said. Thought being an activity of mind, mind has to exist. This view is called subjective idealism. ठीक, ये हो गया दूसरा। स्वतंत्रिक स्कूल, ये हो गया तीसरा। इसमें मैं फिर से वो पिटफॉल जो अवॉइड करना है कि अब सब कुछ यहीं पे निकला के, ऐसा भी नहीं है। 100% बर्कली यही कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं है। बर्कली भी एक बहुत अजीम हस्ती, वो भी ऐसा नहीं है कि यू जस्ट वॉक ओवर हिम कि तुम क्या हो, कुछ नहीं हो। वो भी एक बहुत अजीम हस्ती एक। लेकिन वो जो हमारे यहाँ एक चीज हो गई है ना, यू हैव टू बेंड इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट एंड देन ओनली यू आर ग्रेट, मैं बस उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वेस्ट इज ब्यूटिफुल, ईस्ट इज ब्यूटिफुल। दिस होल्ड्स, ये वाला जो स्कूल है, दिस होल्ड्स दैट बोथ द मेंटल एंड द नॉन मेंटल आर रियल। बोथ द मेंटल एंड द नॉन मेंटल आर रियल। अगर जो भी हम परसीव करते हैं बाहर ये अनरियल होता, देन आवर परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग आउटसाइड द माइंड। तब तो ये सारा मेंटल कंस्ट्रक्शन होता, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज आउटसाइड। बट वी फाइंड माइंड कैन नॉट परसीव एनी ऑब्जेक्ट लाइक ए टाइगर at any place it lives. बाहर की रियलिटी पे डिपेंडेंट है। This proves that the idea of tiger, when we perceive it, depends on some kind of non-mental reality जो बाहर है, जिसको हम टाइगर कहते हैं।
from the perceptual idea or representation of tiger in the mind, we can infer the existence of its cause, the tiger. Thus, external objects can be inferred to exist outside the mind. इसको कहते हैं representationalism और theory of inferability of external object. और लास्ट स्कूल है वैभाषिक. वैभाषिक स्कूल क्या कहता है? ये एग्री करता है जो पिछला स्कूल हमने पढ़ा स्वतंत्र क्या कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर रियल, लेकिन ये डिफर करता है इन रिगार्डिंग द वे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर नोन. वैभाषिक के हिसाब से दे आर डायरेक्टली परसीव्ड, नॉट इन्फर्ड फ्रॉम देयर आइडियाज और रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड. फॉर इफ नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वेर एवर परसीव्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी आइडिया, it would not be possible to infer the existence of an external object from any idea. This view may be called direct realism because it holds that external objects are perceived directly. They are not inferred. Religious matters में ये तो हो गए philosophical matter. Religious matters में बुद्धिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. हीनियन जो इस वक्त साउथ में सेलोन में श्रीलंका बर्मा, और महायान जो नॉर्थ में तिब्बत चाइना जापान यहाँ मिलेगा. द फर्स्ट टू ऑफ द फोर फिलोसॉफिकल स्कूल्स ये महायान के हैं एंड द लास्ट टू ये हीनयान के हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस क्वेश्चन ऑन विच दीज टू स्कूल्स डिफर इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ निर्वाण. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ निर्वाण, इस पे डिफर करते हैं फंडामेंटली. हीनयान क्या कहता है? हीनयान कहता है Nirvana should be sought in order that the individual may put an end to his misery. हीनयान क्या कहता है? Nirvana should be sought in order that the individual may put an end to his misery. महायान क्या कहता है? That the object of Nirvana is not to put an end to one's misery, but to obtain perfect wisdom, with which the liberated can work for the salvation of all beings in misery.